Hello students, in this video we are going to discuss yet another problem from Nutan ISC Physics book, and the chapter happens to be uniform circular motion and the numerical problem number is 6th. The question says that the seconds hand of a clock happens to be 2 centimeter long. You need to calculate the speed of the tip of the seconds hand, and then you also need to calculate the velocity of the seconds hand at 0 second and 15th second, and then you need to find out the change in velocity from 0 to 15 seconds and then the average acceleration. Student, this particular numerical problem is far more related with vectors than being getting related with uniform circular motion. So you need to have the concept of vector very clear in your mind, as well as definitely the UCM will also be required. Let's try to understand what the question says. So the question is saying, as you can see over here, I have got a seconds hand, and at 0th second it happens to be at position 12, as you can see over here, and as the time progresses this second hand goes on rotating about the center, and after completing a one round it once again reaches to this point, isn't it? So we need to calculate this speed with which the second hand completes one round of circular motion. Now you all know that the angular speed of any particle undergoing a circular motion for a complete round can be written as omega is equals to 2 pi upon t. This is the angular speed of a particle going for a circular round. बच्चों circular round घूमने में किसी भी particle को जो angular displacement suffer करना पड़ता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री how many radians that is? That happens to be 2 pi radians. So omega is equals to 2 pi upon t. Now 2 pi, and how much time would take us seconds hand to complete one round of the circle? It takes exactly 60 seconds, isn't it? So the capital T for the seconds hands to complete one round of a circle happens to be 60 seconds. So that is what you should remember. So omega happens to be 2 pi upon 60, or omega happens to be pi upon 30 radians per second or rad per second, isn't it? So बच्चों, ये जो ओमेगा आपका निकल के आया है ये एंगुलर स्पीड आई है किसी भी सेकेंड हैंड की किसी भी क्लॉक की. अच्छा, ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड बच्चों. हर क्लॉक की जो सेकेंड्स की स्पीड होगी वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होगी, और ये इतनी ही होगी पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड. बट अगर मैं इसके लीनियर स्पीड के टिप के लीनियर स्पीड की बात करूं तो लीनियर स्पीड जो है बच्चों वो वैरी करेगी. क्योंकि लीनियर स्पीड जो है v इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ओमेगा, और ये रेडियस डिपेंडेंट है. तो जितना लेंथ होगा उतनी कम या ज्यादा उसकी लीनियर स्पीड होगी. छोटे सेकेंड हैंड की लीनियर स्पीड कम होगी, बड़े सेकेंड हैंड की या लॉन्गर सेकेंड हैंड की लीनियर स्पीड ज़्यादा होगी. यहाँ पर जो हमें लेंथ दिया हुआ है बच्चों सेकेंड हैंड का वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसलिए जो इस सेकेंड हैंड की जो लीनियर स्पीड आएगी तो v इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ओमेगा कितना है बच्चों? पाई बाई 30, और मैं अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आंसर मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ऑब्टेन हो जाएगा. तो क्या लीनियर स्पीड आ गई बच्चों? पाई बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और इसको अगर आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर की मदद से देन यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी इक्वल 0.21 centimeter per second. So this is the linear speed of a second hand बच्चों. और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो निकल के आई है पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड. मैं यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें. व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड अ आवर हैंड? तो बच्चों आपको करना क्या है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड of
सेकेंड हैंड तो हम लोगों ने निकाल लिया है, उसका आंसर आपके पास है, और आंसर क्या था उसका, π/30 रेडियंस पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ, पहला सेकेंड हैंड, दूसरा मिनट्स हैंड, और तीसरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए है आवर्स हैंड के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्स हैंड में थोड़ा सा ट्रिक भी फॉलो करेगा, तो देखता हूं कितने लोग इसके आंसर को करेक्टली देते हैं, और जब मेरे पास आंसर्स आप लोग भेजेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए हम लोग लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। नाउ आई नो द स्पीड ऑफ द tip of the second hand. Now I need to find out the velocity बच्चों। तो चलिए let's begin with finding out the velocity of the second hand at 0th second and at the 15th second। बच्चों at the 0th second the tip of the second hand has got tendency to move towards the positive x axis, coordinate axis के टर्म्स में टिप जो है ये टिप आपका towards the right मूव करेगा। तो जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब भी मैंने आप लोगों को वेक्टर्स की क्लासेस ली और वेक्टर्स की क्लासेस में आप लोगों से डिस्कशन किया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी, किसी भी चीज की वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखने के लिए आपको उसका स्पीड मालूम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। प्रेजेंटली द tip of the second hand at the 0th second tends to move towards the right, so the velocity of the second hand at the 0th second will be, speed of the second hand was calculated to be 0.21 centimeter per second, and since the tip has a tendency to move towards right, so it is plus I cap centimeter per second. So this is the velocity of the second hand at the 0th second. Now बच्चों हमसे second part of the question ने पूछा what will be the velocity of this second hand at the 15th second। तो बच्चों 15th second पे ये जो seconds का hand है वो इस जगह पे आ जाएगा, और जब वो इस पॉइंट पे होगा तो इसके टिप का जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो उस समय जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस है। तो वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड एट द 15th सेकेंड विल बी 0.21 minus j cap meter centimeter per second. So that's the reason why I told you at the beginning of this particular numerical that this numerical is not just the numerical related with uniform circular motion but also it is related with vectors। तो अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तभी आप इसकी वेलोसिटी को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड एट द 0th second is 0.21 I cap centimeter per second, whereas the velocity of tip of the second hand at the 15th second will be 0.21 minus j cap centimeter per second। बच्चों ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि in uniform circular motion the speed of the particle always remains constant, its direction keeps on changing। तो जो टिप है सेकेंड हैंड का उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, हर समय कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इस वजह से हमारा जो टिप है उसके अंदर एक चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सपीरियंस किया जाएगा। और वो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, फिजिक्स कहती है चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ रही है 15th सेकेंड पे 0.21 माइनस जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है 0.21 I cap। So when I am going to solve this, I am going to get the change in velocity to be written as minus 0.21 j cap and minus 0.21 I cap। But remember student, this is not the magnitude of the change in the velocity, it's just the change in the velocity vector। So if you are looking for to express or find the magnitude of the change in velocity, तो modulus of the change in velocity always happens to be under the root of x component का स्क्वायर प्लस y component का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे x component कितना है, बच्चों यहाँ पे x component देखिए कितना है, माइनस 0.21 है,
और y कंपोनेंट भी बच्चों कितना है, -0.21 है। तो मैं इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो अंडर द रूट ऑफ -0.21 का होल स्क्वायर प्लस -0.21 का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 0.21 रूट 2, और इसको आप सॉल्व करके देखिए कैलकुलेटर से, ये निकल के आएगा 0.296 बच्चों। तो ये निकल के आएगा 0.296 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज 0.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एज द आंसर हैज बीन। Students, in order to get the change in direction, change in velocity का direction पाने के लिए what we need to do, see the change in velocity is written as delta v is equals to vf minus vi vector। तो देखो बच्चों, vf वेक्टर किधर की तरफ है, ये आपका vf वेक्टर है, और vi वेक्टर किधर की तरफ है बच्चों, ये आपका vi वेक्टर है। अब चेंज होता क्या है कि चेंज होता है vf, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, vf वेक्टर प्लस माइनस vi वेक्टर, इजंट इट। तो बच्चों vf वेक्टर तो डाउनवर्ड डायरेक्टेड था, क्लियर है, और देखो vi वेक्टर टुवर्ड्स राइट था, तो माइनस vi वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड हो, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका vf वेक्टर, और ये हो गया आपका माइनस vi वेक्टर। तो इन दोनों का वेक्टर सम gives me the direction of the change in velocity vector, और vf हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर, और ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर बच्चों। ये है फर्स्ट वेक्टर और ये है आपका सेकंड वेक्टर। तो अगर आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने सीखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो किन्हीं भी दो वेक्टर के एडिशन से मिलता था was obtained by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector। क्या था, मैं एक क्विक रिवीजन वहां पे दे देता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर a है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर और ये हो गया हमारा सेकेंड वेक्टर b। तो फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर का जो रिजल्टेंट फाइंड करते थे वो ऑब्टेन होता था बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द first vector with the head of the second vector, and this c vector used to give me vector a plus vector b। ठीक बात है बच्चों। तो हमें करना क्या होता था इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यू प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, vf वेक्टर। तो vf वेक्टर पे मुझे करना क्या है, दूसरे वेक्टर के टेल को ले जाकर प्लेस करना है। तो vf वेक्टर का ये हो गया हेड, देख रहा है बच्चों, vf वेक्टर का ये हेड, और उस पे मुझे क्या ले जाना है, मुझे ले जाना है और प्लेस करना है सेकेंड वेक्टर का टेल। तो इस वेक्टर को मैं स्लाइड करके ले आऊंगा और यहाँ पर ले आके मैं सेकेंड वेक्टर का टेल प्लेस कर दूंगा, जो हो जाएगा माइनस vi वेक्टर। अब जब मैंने ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी vf वेक्टर के ऊपर जब मैंने टेल ऑफ द सेकेंड को प्लेस कर दिया, तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बच्चों वो कैसे मिलेगा, बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था बच्चों, तो ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर व्हाट यू कैन सी, आई प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर गोज ऑफ, दिस हैज बीन स्लाइडेड डाउनवर्ड्स, देन the resultant vector will be obtained by joining what, joining the tail of the first vector with the head of the second vector। तो बच्चों ये रहा tail of the first vector और ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा v, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, vf प्लस माइनस vi, दैट इज द चेंज इन वेक्टर, चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। आई होप this discussion will give you some insight about how to find the direction of the change। बच्चों अगर ये चीज नहीं आती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे
कि आप जाइए और मेरा उस वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए इस बात को समझने के लिए। तो देखोगे बच्चों, तो ये जो ब्लैक कलर का एरो मैंने बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। तो मुझे इस चेंज का ये एंगल चाहिए। तो चलिए इस एंगल को निकालते। तो इस एंगल थीटा को निकालने के लिए आप देख पाएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू ये जो माइनस वी आई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी वी आई अपॉन वी एफ। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैंने मैग्नीट्यूड पार्ट को ही इंटरेस्ट में लूंगा। ठीक है, अब वी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों? वो था 0.21। वी एफ वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों? वो भी था 0.21। ठीक बात है, ये आपका वी एफ वेक्टर था और ये आपका वी आई वेक्टर था। इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया और दोनों को उठा के क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो tan थीटा कितना निकल के आ गया बच्चों? tan थीटा निकल के आ गया 1। देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्रीज। तो इस तरीके से आपको ये थीटा निकल के आया जो कि कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। और किस डायरेक्शन में है? अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस कंप्लीट कर दूं तो आप देखेंगे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने वेक्टर्स के नोटेशन में लिखा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको इंडिकेटिव कर दिया है किस तरह से कि दैट द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर व्हिच हैपेंस टू बी 0.30 सेंटीमीटर पर सेकंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बच्चों अगर राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। और ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस आंसर को डिस्क्राइब किया गया है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ पार्ट कह रहा है यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड। ठीक है, कितनी देर में इसकी ये वेलोसिटी चेंज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल इज जिसमें ये चेंज टेक प्लेस किया। तो कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी अभी आपने निकाला था 0.30 सेंटीमीटर पर सेकंड का था। और ये चेंज कितनी देर में आया है? ये टोटल चेंज आया है आफ्टर इन 15 सेकंड्स। तो वंस यू आर गोइंग टू सॉल्व द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरह से एक्सप्लोर करता है। तो ये यूसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप इस मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते रहेंगे तो आपको एक मदद मिलेगी गूगल एआई से, और वो होगा कि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज कीप liking the video so that you get the notification of similar videos whenever they are uploaded on YouTube. Thank you very much, students.